محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے اور یہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اس بچے کی طرف دیکھتے جو ان پوچھنے والوں کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر فرماتے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے نہیں پائے گا کہ تم پر تمہاری قیامت ہو جائے گی. تشریح: اگر یہ بچہ زندہ رہا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بچہ کے بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تم سب وفات پا جاؤ گے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا مذکورہ مدت کے عرصہ کے بعد ایک نسل کے خاتمہ اور ایک قرن یعنی عہد کے اختتام پذیر ہو جانے کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ ایک پوری نسل کا ختم ہو جانا اور ایک زمانہ کا اپنی مدت کو پہنچ کر اختتام پذیر ہو جانا ایک طرح سے قیامت ہی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو ساتھ کن تمہاری قیامت سے تعبیر فرمایا. اس حدیث کے سلسلہ میں زیادہ واضح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ پوچھنے والوں نے قیامت کبریٰ کے بارے میں پوچھا، اور چونکہ ان کا یہ سوال ایسا تھا جس کا صحیح جواب دینا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکیمانہ اسلوب میں مذکورہ جواب عنایت فرمایا. ساتھ قم تمہاری قیامت، اس سے مراد بعض حضرات کے نزدیک قیامت صغریٰ یعنی پوچھنے والوں کا مر جانا ہے، اور بعض شارحین نے اس سے قیامت وسطیٰ مراد لی ہے، جس کا مطلب ان جیسی عمر رکھنے والے سب لوگوں کا مر جانا ہے. اور یہ طے ہے کہ یہ بات اکثر و غالب کے اقرار کے اعتبار سے آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. پی سی سی صدر کی حیثیت سے نامزد ہونے کے بعد پی سی سی مہیش کمار گوڈ کی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات. ضلع بھر میں کتوں کی کثرت، عوام بالخصوص معصوم بچے کتوں کے حملوں میں زخمی. باس کی اموات، بھیمبر میں بھی کتوں کے حملے میں معصوم زخمی. ضلع کا اہم و تاریخی آبی پروجیکٹ نظام ساگر پروجیکٹ کی سطح میں مسلسل اضافہ، 3 گیٹوں سے سیلابی پانی کا اخراج. پروجیکٹ پر خوبصورت نظارے. اب خبریں تفصیل سے. پی سی سی صدر مقرر ہونے کے بعد مہیش کمار گوڈ کی سی ایم ریونت ریڈی سے ملاقات اور کیا شکریہ ادا. اس موقع پر سی ایم ریونت ریڈی نے مہیش کمار گوڈ کو شال سے نوازا اور دی مبارکباد. آل انڈیا کانگریس کمیٹی اے آئی سی سی نے بی مہیش کمار گوڈ کو تلنگانہ اسٹیٹ کانگریس کمیٹی کا صدر مقرر کیا ہے. ہفتے کی صبح پی سی سی صدر مہیش کمار گوڈ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پہنچے اور ان سے ملاقات کی. مہیش جو اپنی رہائش گاہ پر پہنچے کو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ نے شال سے نوازا. بعد ازاں مہیش کمار گوڈ کو چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مبارکباد پیش کی. اس موقع پر ان کے درمیان مختصر سی بات چیت ہوئی. مہیش کمار گوڈ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی تقرری میں ان کی کوششوں کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا. ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار کے ہمراہ جمعے کو نظام آباد ضلع کے ونائک نگر میں ای وی ایم گودام کا کیا دورہ اور انتخابی مواد کو سی سی ٹی وی پر محفوظ کرنے کے طریقے کی جانچ کی. نظام آباد ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار کے ہمراہ جمعے کو نظام آباد ضلع ہیڈ کوارٹر کے ونائک نگر میں ای وی ایم گودام کا دورہ کیا. فیلڈ وزٹ معمول کے مشاہدے کے عمل کے حصے کے طور پر کیا گیا تھا. انہوں نے
EVM गोदाम पर लगाए गए मोहरों का मुआयना किया और बैलेट यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स, VVPAT और दीगर इंतखाबी मवाद को CCTV पर महफूज करने के तरीक़ेकार की जांच की। उन्होंने ये देखकर इत्मीनान का इजहार किया कि EVM गोदाम में पुलिस की सख्त निगरानी की जा रही। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की हिफाजत के मामले में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। कलेक्टर के हमरा इलेक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज पवन, सात्विक और मुतल्लिका महकमे के अफसरान मौजूद थे। दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली के तलबा की इल्मी, अदबी, इस्लाही, दीनी और दावती सलाहियतों को निखारने की गर्ज पहली अंजुमन मुनक़िद ताकि तलबा में ज़ौक़ मुतालिया व ज़ौक़ खिताबात की अंजुमन बज़्म सईद का क़याम अमल में लाया गया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी का बयान। दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद के तलबा की इल्मी, अदबी, इस्लाही, दीनी और दावती सलाहियतों को निखारने की गर्ज से असातिज़ा इकराम व उलमा उस्साम की बाहमी मशवरे से आज बातारीख़ 7 सितंबर 2024 बरोज़ हफ्ता पहली अंजुमन मुनक़िद की गई। वाज़ेह है कि अपनी नौइयत का एक मुनफरिद नौक़ैस दीनी व दुनियावी उलूम का मरकज़ इदारा दारुल उलूम सईदिया के तलबा में ज़ौक़, मुतालिया व शौक़ खिताबात पैदा करने के लिए अंजुमन बज़्म सईद का क़याम अमल में लाया गया, जहां बाज़ाब्ता तौर पर शहर निज़ामाबाद के माहिर व जय्यद उलमा व खुतबा की निगरानी में उर्दू, अंग्रेज़ी तकरीरों नेज़ मज़मून निगारी में महारत पैदा करने की सही वो कोशिश की जाएंगी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व ख़ादिम दारुल उलूम सईदिया ने इस बात का भी इजहार किया कि दारुल उलूम सईदिया में अल्हम्दुलिल्लाह 60 तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में दाखिल दर्स होकर नूरानी क़ायदा, नाज़िरा कुरान व हिफ्ज़ कुरान मा तजवीद के अलावा आलिम कोर्स के इब्तिदाई 2 सालों की बुनियादी तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी नाज़िम तालीमात ने तकरीर व तहरीर की अहमियत व ज़रूरत पर रोशनी डालते हुए तलबा में शऊर बेदार कराया। मौलाना सैयद मुस्तफ़ा क़ासमी इमाम ख़तीब मस्जिद मोहम्मदिया व उस्ताद मदरसा महदुल अशरफ ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। मौलाना अरशद अली क़ासमी नायब नाज़िम दारुल उलूम सईदिया, मौलाना एजाज क़ासमी, मौलाना हफीज़ अली क़मर, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद हनीफ़ व दिगर ने तलबा की हिम्मत व हौसला अफजाई फरमाई। इंशाअल्लाह हर हफ्ते बाद नमाज ज़ोहर मीक़ात सानिया में अंजुमन बज़्म सईद और दारुल मुतालिया का सिलसिला जारी रहेगा। बड़ी बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, मसाइब बर्दाश्त किए, दूर दराज के सफ़र तय किए, खतरनाक रास्तों से गुजरे, मुसाफिरत और गुर्बत की ज़िंदगी इख्तियार की, मगर अफसोस कि आज मुसलमानों में वो इल्मी ज़ौक़ बाकी न रहा जो हमारे असलाफ में था। वो इल्मी वलवला अब सर्द पड़ चुका है जिसके ज़रिए हमारे असलाफ दुनिया में चमके और नाम पैदा किया। वो इल्मी वलवला अब मान पड़ गया जिसने सारी दुनिया को मुसलमानों के आगे ज़ानो अदब तय करने पर मजबूर कर दिया था। हमें चाहिए कि हम अपने असलाफ की तरह वो इल्मी ज़ौक़ अपने अंदर पैदा करें, उनकी तरह वो शौक़ वो इल्मी वलवला हमारे अंदर पैदा करें ताकि हम अपना खोया हुआ वक़ार वापस पा सके। आधार कार्ड मुफ्त अपडेट कराने के लिए 14 सितंबर आखिरी मोहलत। हुकूमत की हर फलाई स्कीम से इस्तिफादा करने के लिए आधार कार्ड लाजमी। मरकज़ी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक हर शहरी को अपना आधार कार्ड 10 साल में एक मरतबा अपडेट कराना लाजमी है। आधार कार्ड अपडेट कराने की मोहलत में तौसीअ दी गई थी। 14 सितंबर तक आधार कार्ड मुफ्त अपडेट कराने की सहूलत फ्राहम की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि आधार अपडेट कराने का ये आखिरी मौका हो सकता है। गुज़िश्ता साल और जारिया साल भी कई मरतबा इस मोहलत में तौसीअ दी गई है। अब मज़ीद इस मोहलत में तौसीअ दी जाएंगी या नहीं, अभी तक कोई वजाहत नहीं की गई है। अगर किसी ने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया तो वो फौरी इस सहूलत से इस्तिफ़ादा कर ले। आधार इनरोलमेंट अपडेट रेगुलेशंस 2016 के तहत शहरियों को अपना आधार इनरोलमेंट की तारीख से हर 10 साल की तकमील पर POI और POA दस्तावेज़ात लाजमी तौर पर अपडेट कराना है। ये 5 ta 15 साल उम्र के बच्चों से मुतल्लिक़ ब्लू आधार कार्ड पर भी बायोमेट्रिक तफसीलात अपडेट कराना होगा। आधार कार्ड ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। स्कूल्स में दाखिलों से लेकर बैंक अकाउंट्स खोलने या फिर हुकूमत की किसी भी फलाई स्कीमात से इस्तिफ़ादा करने के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। इस तरह हर काम के लिए आधार कार्ड ज़रूरी हो गया है। एक मरतबा आधार कार्ड बना लेना काफ़ी नहीं, आधार कार्ड में कोई गलतियाँ
लेना हो या पता तब्दील करना हो, फ़ोन नंबर तब्दील करना हो तो फौरी अपडेट कराना ज़रूरी है। ताहम अभी तक मरकज़ी हुकूमत ने ऑनलाइन में मुफ्त आधार कार्ड अपडेट करने की सहूलत फ्राहम की है। 14 सितंबर 2024 को ये मोहलत ख़त्म हो रही है। जो शहरी अपडेट नहीं कराए इससे क़ब्ल अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें। कांग्रेस पार्टी से 40 वर्षों से वाबस्ता होकर पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए कारकुन की हैसियत से काम किया। ओहदों पर रहे कई उतार चढ़ाव, उरूज व ज़वाल देखा और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर का बावकार ओहदा हासिल। महेश कुमार बोमा पर खास रिपोर्ट। बी महेश कुमार गौड़, जिन्हें तेलंगाना स्टेट कांग्रेस पार्टी का सदर मुकर्रर किया गया है, 40 साल से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता है। महेश कुमार गौड़, जिन्होंने अपनी डिग्री की तालीम के दौरान कांग्रेस से वाबस्ता NSUI स्टूडेंट्स यूनियन में शमूलियत इख्तियार की थी, तंजीम की सफ़ों तक पहुँच रेवंत रेड्डी के कांग्रेस पार्टी के सदर बनने के बाद कारगुजार सदर मुकर्रर किए गए महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन का चार्ज संभालिया। ये अज़म एक साथ आया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के करीबी साथी महेश कुमार गौड़ को शुरू से ही PCC का सदर बनाया गया है। महेश कुमार गौड़, जिनका कोई खानदानी सियासी पस मंजर नहीं, कांग्रेस पार्टी में एक तवील करियर रखते हैं। भीमगल मंडल के राहत नगर में पैदा होने वाले महेश कुमार गौड़ ने निजामाबाद शहर के GG कॉलेज से BCom की तालीम हासिल की। यही वो वक्त था जब उन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल की। बहुत से नौजवानों को कराटे की तरबियत दी। महेश ने NSUI में अपना किरदार अदा किया। महेश गौड़ ने यूथ कांग्रेस डिपार्टमेंट में ओहदों पर फायज रहते हुए कांग्रेस पार्टी में भी वसी राब्ते कायम किए। ये कहा जा सकता है कि उनके साथ काम करने वाले बहुत से रहनुमा MP और चीफ मिनिस्टर बन गए। महेश, जो BC बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, एक हसास शख्स है। ये उनकी फितरत है कि वो किसी को तकलीफ पहुँचाए बगैर अपने अंदाज में बात करें और हर एक तक पहुँचे। अगरचे बहुत सी अवाम PCC सदर के ओहदे के लिए मुकाबला कर रहे थे, लेकिन हाईकमान ने आखिरकार महेश कुमार गौड़ को मौका दिया, जिनका ताल्लुक BC बरादरी से है। महेश कुमार गौड़ को TPCC सरबराह का ओहदा देने की कई दिगर वजूहात हैं। महेश कुमार का कांग्रेस के साथ 40 साल पुराना ताल्लुक है। ये कोई गैर मामूली बात नहीं कि एक रहनुमा ने 4 दहाइयों तक सिर्फ पार्टी पर भरोसा किया हो। ये कहना जरूरी है कि ये सिर्फ महेश कुमार गौड़ के लिए ही मुमकिन था। उन्होंने कभी ओहदों की तलाश नहीं की। जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपनी निशिस्त भी कुर्बान कर दी। 2018 और 2023 के इंतखाबात में महेश ने अपनी सीट कुर्बान कर दी थी और इलेक्शन नहीं लड़ा था, क्योंकि हाईकमान ने किसी और को टिकट दिया था। 2024 में वो MLA कोटे से MLC मुंतखब हुए थे। BC के बहुत से रहनुमाओं ने इस ओहदे के लिए मुकाबला किया, लेकिन उन्हें ये ओहदा मिल गया। महेश कुमार गौड़ की मुखालिफत की गैर मौजूदगी, NSUI से उनका फाल काम, निचली सतह के रहनुमाओं की शमूलियत, पिछले इंतखाबात में उनकी सीट की कुर्बानी, पार्टी की सरगर्मियों में फाल हिस्सेदारी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के साथ करीबी ताल्लुकात उनके लिए इकट्ठे होने की वजूहात है। अहमद हुसैन, सदर शरीफ पंचायत बांसवाड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से लीगल एडवाइजर के नुमाइंदे की हैसियत से मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई और जामा मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा कि हाई कोर्ट की जानिब से अहमद हुसैन जैसी काबिल शख्सियत को मुंतखब करना बांसवाड़ा की अवाम के लिए एहसास की बात है। अवाम को चाहिए कि अपने मसाइल पुलिस या अदालतों से राब्ता करने के बजाय अहमद हुसैन से अपने मसाइल हल करें। इस मौके पर जामा मस्जिद सदर मोहम्मद इम्तियाज अहमद, असद बिन मोहसिन, शादी खाना सदर हाफिज अब्दुल वहाब, वासी अफरोज मौजूद थे। जामा मस्जिद तंजीमुल मसाजिद दफ्तर के अंदर जनाब अहमद हुसैन साहब, सदर शरीफ पंचायत बांसवाड़ा को हुकूमत की जानिब से भी, हाई कोर्ट की जानिब से, हाई कोर्ट के जज साहब की और हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें डिस्ट्रिक्ट कामाडी के लीगल एडवाइज़र के तौर पर, जो शरीफ पंचायत के सदर होते हुए और दूसरे भी कोई मामलात अगर हो, आपसी इख्तलाफात या शरई मामलात हो, मियाँ बीवी के झगड़े या घरेलू मसाइल, कुछ इस किस्म के वाक़यात जो होते हैं, उनमें पुलिस स्टेशन ना जाते हुए आपस में बैठकर शरई हैसियत से शरीफ पंचायत की कमेटी में और इनकी जो है ना तहत इस मामलात को हल कर लेने के लिए ये जो उनको आज ओहदा दिया गया है, उस ओहदे के निस्बत से तंजीमुल मसाजिद के सदर जनाब तन्नू साहब की सरपरस्ती में और तमाम
कमेटी के जिम्मेदारों की मौजूदगी में आज उनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और सबसे इल्तिजा और दरख्वास्त भी ये करते हैं कि तमाम लोग अपने कोई आपसी मसाइल हो तो शरीफ पंचायत से रुजू होकर आसानी के साथ अपने मसाइल को हल कर लें और पुलिस स्टेशन के और कोर्ट के चक्कर ना लगाएं। ये बेहतर होगा कि हमारी कौम के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया तमाम सड़कें बुरी तरह तबाह, जगह जगह कचरे के ढेर, सड़कों पर बारिश का पानी जमा। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया से हुकूमत को लाखों की आमदनी मगर तरक्की सिफर। माना कैसे 26 एकड़ रकबे पर कायम ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया बोधन रोड निजामाबाद में कारोबार अंजाम देने वाले ताजरीन को इस इलाके में तरक्याती कामों की कोई फिक्र दिखाई नहीं दे रही। बताया जाता है कि मुकामी ताजरीन की जानिब से इलाके की खुली ज़मीनों और तमाम सड़कों पर बड़ी बड़ी लॉरियां और कारें पार्क की जाती है। इन ताजरीन को गंदगी और बदबू में रहने की अब आदत हो चुकी है। कई कारखानों में काम करने वाले लेबर्स मुलाजमीन की मौत के वाक़यात भी साबिक़ में पेश आ चुके हैं। कारखानों के मुलाजमीन लेबर्स के साथ हादसात होते रहते हैं जिन्हें दबा दिया जाता है। बाज़ नौजवानों का कहना है कि इस इलाके के बाज़ ताजरीन चाहते हैं कि ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया हमेशा पसमानदगी का शिकार रहे ताकि उनके गैर क़ानूनी कारोबार मुतासिर ना हो और वह हुकूमत का टैक्स चोरी करते हुए इसी तरह लाखों करोड़ों रुपये कमाते रहे। ये इस बात का सबूत है कि ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबार अंजाम देने वाले ताजरीन की जानिब से मौजूदा हुकूमत या कायदीन से ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया में तरक्याती कामों के लिए गुज़िश्ता 7 महीनों के दौरान आज तक कोई नुमाइंदगी नहीं की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में वाक़ इंडस्ट्रियल एरिए हरे भरे, पाक साफ, तरक्की याफ्ता, हाई फाई होते हैं। जैसे कि हैदराबाद के हफीज़पेट और बालानगर में वाक़ इंडस्ट्रियल एरिया इंतहाई तरक्की याफ्ता है। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया के ताजरीन को अब इस इलाके की तरक्की से कोई वास्ता नहीं, लेकिन मुख्तलिफ इलाक़ों की अवाम इन सड़कों से गुज़रते हैं जिन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा को इन सड़कों से गुजरने के लिए परेशानी का सामना है। सैयद कैसर कायद कांग्रेस की जानिब से साबिक़ BRS दौरे हुकूमत में कई मरतबा ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया में तरक्की याफ्ता कामों के लिए नुमाइंदगी की गई थी। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया की सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ भी सैयद कैसर ने बड़े पैमाने पर नुमाइंदगी करते हुए नाजायज़ कब्जे को बर्खास्त कराया था। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों से गुजरने वाले तलबा का हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द सड़कों की तामीर अमल में लाई जाए और इस इलाके की सरकारी खुली अराजी में पार्क की तामीर की जाए। मुश्तरका निजामाबाद की अवाम के फायदे के लिए निजाम सागर प्रोजेक्ट पानी से लबरेज हो रहा। हफ्ते को प्रोजेक्ट में ऊपरी हिस्से से पानी की आमद जारी रहने के बाद दरियाए मंजीरा में पानी छोड़ने के लिए प्रोजेक्ट के 3 गेट खोले गए। मुश्तरका निजामाबाद ज़िले में निज़ाम सागर प्रोजेक्ट अवाम की पीने के पानी की ज़रूरियात के साथ साथ किसानों के लिए एक नेमत है। गोदावरी की एक मुआविन नदी मंजीरा नदी पर बनाया गया ये प्रोजेक्ट मुश्तरका ज़िलों के किसानों की उम्मीद है। बालाई इलाकों से मंसूबे में सैलाब का सिलसिला हालिया बारिश के साथ जारी है। हफ्ते के रोज़ मंसूबे में 30,000 क्यूसिक सैलाबी पानी है और पानी को मंसूबे के 4 गेट्स के जरिए लोअर मंजीरा नदी में छोड़ा गया। मंसूबे में पानी की मुकम्मल सतह 1405 फीट है और अब ये 1404.50 फीट है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल पानी की गुंजाइश 17.802 TMC है जो अब 17.079 TMC तक पहुंच गई है। प्रोजेक्ट हुकाम का कहना है कि मंसूबा पानी की मुकम्मल सतह तक पहुंच चुका है और बालाई इलाकों से आने वाले बहाव के मुताबिक गेट्स की तादाद में इजाफा और कमी की जाएगी। कामारेड्डी जिले के बीरपुर मंडल मुस्तकर में सुफियान नामी लड़के पर आवारा कुत्तों ने किया हमला। कुत्ते ग्रोह बनाकर अवाम पर कर रहे हमला जिससे अवाम खौफजदा। पंचायत हुक्काम कुत्तों की रोकथाम के लिए इक़दाम करें, मुकामी अवाम का मुतालिबा। कामारेड्डी ज़िले की बीरपुर मंडल मुस्तकर में दूध का पैकेट लेने के लिए ग्रोसरी की दुकान पर सोफियान गया हुआ था। इस दौरान एक आवारा कुत्ते ने लड़के पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। मुकामी अवाम के चीखने के बाद
कुत्ता मौके से फरार हो गया और जख्मी सुफियान को उसके अहले खाना ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए गांव वालों ने तशवीश का इजहार किया कि उनके गांव में आवारा कुत्तों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कुत्ते ग्रोहों में घूम रहे और हमला कर रहे। मजीद कहा कि ये बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। गांव वालों ने शिकायत की कि वो बच्चों को बाहर भेजने से डरते क्योंकि कुत्ते उन पर हमला करें। पंचायत हुक्काम कुत्तों की रोकथाम के लिए इक़दामात करें। కొడుకు సోఫియాన్ పాల కోసం నేను పాల కేంద్రం ముంగట పిచ్చి కుక్కలు ఉన్నాయన్నీ. మా మామ కొడుకు కాలుకు పిచ్చి కుక్క కరిచింది, రక్తం చాలా పోయింది. హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినాం, చూపెట్టినాం. మొత్తం మన బిరుకూరులో మొత్తం పిచ్చి కుక్కలే ఉన్నాయి అన్నీ. పిచ్చి కుక్కలకు గ్రామ పంచాయతీ ఇబ్బందులు ఎవరైనా దానికి సంబంధించిన వాళ్ళు దానికి పట్టుకోవాలా, లేకుంటే దానికి చంపేయాలా. చాలామంది పిల్లలు బయటకు వెళ్ళాలంటే చాలా బుగులు పడుతున్నారు. మన బిరుకూరులో చాలా పిచ్చి కుక్కలు గుంపులుగా తిరుగుతున్నాయి. ఎక్కడ వెళ్ళినా 10-20 కుక్కలు ఉంటున్నాయి. చిన్న పిల్లలు వెళ్ళాలంటే చాలా బుగులు పడుతున్నారు, కూడా భయం అవుతున్నది. నేను అలా పట్టినాక మళ్ళీ బైక్ మీద వెళ్తే మా వెంబడి కూడా పడ్డాయి కుక్కలు. इख्तिताम से पब्लिक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों को। पीसीसी सदर की हैसियत से नामजद होने के बाद पीसीसी महेश कुमार गौड़ की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। जिला भर में कुत्तों की कसरत, अवाम बिलखुसूस मासूम बच्चे कुत्तों के हमलों में जख्मी। पास की अमवात, भीमगढ़ में भी कुत्तों के हमले में मासूम जख्मी। जिले का अहम व तारीखी आबी प्रोजेक्ट निजाम सागर प्रोजेक्ट की सत्याप में मुसलसल इजाफा। 3 गेटों से सैलाबी पानी का अखराज। प्रोजेक्ट पर खूबसूरत नजारा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ ही मुलाकात हो। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। आप दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।